Michaelis-Menten equation. Before starting today's topic, I would like to recall our previous lectures. We have started from enzymes, their definition, characteristics, then there are certain factors affecting on the enzymes, for example, cofactors and then coenzymes, classification of enzymes, and mechanism of catalysis at the active site. Now today we will discuss a little bit about the kinetics of the enzymology. How do enzymes work kinetically? Enzyme kinetics is the field of biochemistry concerned with the quantitative measurement of the rates of enzyme catalyst reactions, speed at which the enzyme reactions occur, and then the systemic study of the factors affecting these rates. कौन सा एंजाइमेटिक रिएक्शन किस रेट से किस डायरेक्शन में जाएगा, और अगर हम टेम्परेचर, पीएच जैसे फैक्टर्स को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो उनका क्या इफेक्ट आएगा. That all come under the heading of enzyme kinetics. Here are certain abbreviations which we use in enzyme kinetics. This capital S in brackets is known as substrate concentration. It's not only the substrate, but it's the concentration of a substrate. V is for velocity, Vmax maximum. So Vmax is maximum velocity. Km is the enzyme kinetics constant, and V naught is the initial enzymatic reaction velocity. So we will use these four terms in our different equations. Let's suppose we have an enzymatic reaction in which enzyme interacts with a substrate, and that forms enzyme substrate complex, an intermediate present at a transition state at a very high energy state. And for this reaction constant is K1. This enzyme substrate complex can be converted into enzyme and product. And here the reaction rate constant is K2, or it can be converted back to enzyme and substrate. And here the rate constant is K minus 1. इस ऐसी इक्वेशंस तो आपने ऑलरेडी एफएससी में या एओ लेवल्स में की होंगी. K1, K2 and K minus 1 are the rate constants. कितनी डाइवर्जन हो रही है, कितनी कन्वर्जन हो रही है, ये उसको मेजर करते हैं. At a particular substrate concentration and pH, these are the fixed values. ये स्टैंडर्ड्स होती हैं हर सबस्ट्रेट के लिए और हर एंजाइमेटिक रिएक्शन के लिए. इनकी वैल्यूज सेम रहती हैं. So here is the equation of Michaelis-Menten equation or Michaelis-Menten equation. You don't need to derive this equation, but remember the final version. Derivation इसकी required नहीं है, यहाँ पे सिर्फ इसका फाइनल वर्जन रिक्वायर्ड है. सो V नॉट इज इक्वल टू V max into substrate concentration डिवाइडेड बाय Km प्लस substrate concentration. अगर आप डेरिवेशन देखना चाहते हैं, करना चाहते हैं तो डिफरेंट बुक्स में दी हुई है, बट यू डोंट नीड टू ड्राइव दिस इक्वेशन इन योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ये फाइनल वर्जन बस यही चाहिए. V नॉट इनिशियल रिएक्शन वेलोसिटी, Vmax maximum velocity, substrate concentration, and this Km is the Michaelis constant. And numerically it is equal to K minus 1 plus K2 divided by K1. This one K minus 1 plus K2 divided by K1. ये मैथमेटिकल डेरिवेशंस हैं और ये आप मुझसे ज़्यादा अच्छे तरीके से जानते होंगे कि मैथमेटिकल डेरिवेशंस में किस तरह की किससे की जाती हैं.
सो कोई स्टूडेंट ऐसा है जो कह सकता है कि मैंने ये इक्वेशन देखी है, मुझे ये मेमोराइज हो गई, मैंने याद कर लिया, मुझे इसकी थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग बन गई है. इज देयर एनी स्टूडेंट? No one. Okay, that's great. To drive this equation, Michaelis and Menten have assumed certain points. And what are those? Number one is relative concentration enzyme and substrate. Substrate should be present at much higher quantity than the enzyme. And to derive this equation, they stated that enzymatic reaction should be in a steady state. Steady state means formation of ES should be equal to breakdown of ES. एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जितना बन रहा है उतने ही वो टूट रहा होगा, सेम रेट होना चाहिए. दैट इज स्टेडी स्टेट assumption. And then to derive this equation, they have used initial velocity at the start of a chemical reaction, because at the start of a chemical reaction there is much higher concentration of substrates are present, a little quantity of product is present, and there are very little chances of reverse reaction. So they have assumed certain assumptions. Start of the reaction, enzyme and substrate are present in much higher quantity. ES is present, but this portion, they are present at a negligible amount. And then the reverse reaction is also negligible. So they said that substrate should be in higher concentration, ES should be present at steady state, and then they measure the initial velocity at the start of a reaction. These are their assumptions to derive that equation. Enzymes follow the Michaelis-Menten kinetics. Show the hyperbolic curve, this one, blue line. And the enzymes which do not follow this Michaelis-Menten kinetics, सॉरी समझ नहीं आया क्या कहा आपने. Allostatic enzymes are cooperative binding enzymes that do not follow the Michaelis-Menten equation, show presented with a sigmoidal curve. आपने ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व या ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन कर्व में देखा होगा. अगर हम ऑक्सीजन मायोग्लोबिन कर्व के देखें, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व मायोग्लोबिन, दैट इज हाइपरबोलिक, एंड फॉर हीमोग्लोबिन इट्स सिग्मोइडल. जहाँ पे कोऑपरेटिव बाइंडिंग होगी वहाँ पे सिग्मोइडल कर्व आएगी, और जो सिंपल एक मॉलिक्यूल एक ही सबस्ट्रेट की बात करेंगे वहाँ पे हाइपरबोलिक कर्व आएगी. ये दोनों में डिफरेंस है. And what are the important conclusions of this Michaelis-Menten equation? So first of all, we will discuss what is the Km. Km is a rate constant, and numerically its value is equal to substrate concentration at which reaction velocity is half to Vmax. ये थोड़ा सा मुश्किल कंसेप्ट है. अगर ये आपको समझ में आ गया तो बाकी आप काफ़ी आसानी से कर लेंगे. Km is numerically equal to the substrate concentration at which reaction velocity is half to V maximum. ये सबस्ट्रेट की वो कंसंट्रेशन है जहाँ पे रिएक्शन रेट 50% होगा. And this Km shows the affinity of enzyme for that substrate. Km does not vary with the concentration of enzyme. This one, substrate concentration
velocity starting from 0 to Vmax that enzyme could achieve maximum velocity. So Km is the substrate concentration, this one, at which velocity is half to Vmax. Small Km reflects high infinity and large Km shows low infinity. अगर हम इन दोनों रिएक्शंस की बात करें Km1 एंड Km2, कौन सा रिएक्शन मैक्सिमम वेलोसिटी जल्दी अचीव करेगा, फर्स्ट वन और सेकंड वन? Second one. This first one, Km1, because a very small quantity is required to half saturate the enzyme. So Km1 will proceed on a much faster rate than Km2. Km1 shows the affinity of enzyme for the substrate and it numerically is equal to the substrate concentration at which the velocity is half Vmax. Keep in mind it is the substrate concentration. जितना Km कम होगा उतनी affinity ज़्यादा होगी और जितना Km इंक्रीज होता जाएगा उतनी affinity कम होगी और हाफ Vmax तक पहुंचने के लिए ज़्यादा concentration रिक्वायर्ड होगी, ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड होगा. ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट करते हैं काइनेजेस, फास्फोराइलेशन करते हैं. दो तरह के काइनेजेस हैं, वन इज ग्लूकोकाइनेज एंड अदर इज हेक्सोकाइनेज. तो जो ग्लूकोकाइनेज वाला है उससे ज़्यादा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड होती है ताकि वो एक्टिव हो सके, और जो हेक्सोकाइनेज है वो थोड़ा सा भी ग्लूकोज होता है उसे कन्वर्ट करना शुरू कर देता है. सो के ग्लूकोकाइनेज की केएम वैल्यू कम होगी और हेक्सोकाइनेज की और ग्लूकोकाइनेज की ज़्यादा है, जिससे ज़्यादा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड है. ये आप सेकेंड ईयर में देखेंगे. Effect of enzyme concentration of enzyme kinetics. Very simple. Reaction rate is directly proportional to enzyme concentration at all substrate concentration. जितना enzyme हम बढ़ा देंगे reaction rate बढ़ता जाएगा. अगर कम कर देंगे enzyme concentration तो reaction rate half हो जाएगा. Here comes the concept of first order reactions and zero order reactions. Pure chemistry rather than biochemistry. We say a reaction is a first order reaction if the reaction rate is directly proportional to the substrate concentration. And we say that a reaction is a zero order reaction if the reaction rate is independent of the substrate concentration. At a very small substrate concentration, less than Km value, reaction rate is of first order. जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बहुत कम है, Km वैल्यू से भी कम होगी, तो सर जितना भी सबस्ट्रेट होगा सारे का सारा एंजाइम के साथ अटैच होगा और रिएक्शन प्रोसीड करेगा, प्रोडक्ट बनेगी. एंड दैट वी से दैट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. रिएक्शन प्रोसीड करता जाएगा and very high substrate concentration where substrate concentration is much more than Km value, reaction rate would become independent of the substrate concentration. ऐसा क्यों होगा या किस कंडीशन में हो सकता है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन की कोई एग्जांपल दे सकते हो? सर फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस है, ओके. रेस्पिरेशन. अल्कोहलिक पेशेंट्स, ड्रिंकर्स,
उनमें हर एक में जो रिएक्शंस होते हैं या जो उसमें बॉडी रिस्पॉन्स होता है डिफरेंट होता है। अगर तो वो कम पिएंगे तो एंजाइम्स मौजूद हैं, वो उसे मेटाबोलाइज कर देंगे, प्रॉब्लम नहीं होगी। और जब बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग हो जाती है उस वक्त क्या होता है कि जितने भी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं वो सारे के सारे ऑक्यूपाई होते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा अल्कोहल जिसके लिए कोई एंजाइम ही नहीं बचा तो वो फिर एंजाइमेटिक रिएक्शन को भी कोई फर्क नहीं डालती, डेट वुड बिकम जीरो ऑर्डर। हमारे पास 100 एंजाइम से 100 के 100 एंजाइम ने 100 मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट करना शुरू कर दिया, लेकिन जो मॉलिक्यूल्स हमारे पास प्रेजेंट थे सेपरेट के, डेट वुड बी 1000। तो जो बाकी के 900 है अब उसका इस एंजाइमेटिक रिएक्शन रेट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, डेट वुड कॉल एज जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। और अल्कोहल के ज़्यादा नुकसान उसी वक्त होते हैं जब उसके वो सैचुरेट कर देते हैं एंजाइमेटिक फंक्शंस को बॉडी के, और बाकी एज इट इज बॉडी को हार्म करना शुरू कर देती है। फर्स्ट ऑर्डर substrate concentration dependent, zero order independent to the substrate concentration due to the saturation of all the active sites of all the enzymes present। जब सारी एक्टिव साइट्स ऑक्यूपाई हो जाएंगे तो फिर रिएक्शन रेट को हम मजीद इंक्रीज नहीं कर सकते। लेकिन सर एंजाइम तो बार बार यूज हो जाते हैं। एग्जैक्टली एंजाइम्स बार बार यूज होते हैं, लेकिन हम बात करें एट ए पर्टिकुलर टाइम की। अगर एंजाइमेटिक रिएक्शंस की जो एंजाइम्स वहाँ पे प्रेजेंट हैं वो एक टाइम में 1000 मॉलिक्यूल्स को क्रॉस कर सकते या प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं 10,000, तो वो उस पर्टिकुलर टाइम में बाकी के 9000 को कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। ये एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि वैसे तो एंजाइम्स भी बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं और जो प्रोडक्टेंट्स हैं या सबस्ट्रेट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम पे एक्टिव साइट सारी की सारी ऑक्यूपाई होंगी। जितने भी प्रेजेंट थे वो रीयूज होते रहते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट रेट ऑफ द रिएक्शन कि वो पर यूनिट टाइम में कन्वर्जन कैसे कर रहे हैं, वो करते रहेंगे लेकिन फिर भी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन वहाँ पे ज़्यादा ही रहती है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन when the substrate concentration is much more than enzyme could convert to product। Magalhaes Menden question, we have this curve hyperbolic and here we cannot measure this Vmax कि वो कहाँ पे जाके अचीव होगी क्योंकि अपवर्ड्स फ्लो थोड़ी बढ़ती रहती है। Then we have Lineweaver-Burke plot to solve the problem। In Michaelis-Menten equation, we are not sure where the Vmax would be achieved, but in hyperbolic, we can particularly measure this Vmax। Lineweaver-Burke plot is also known as a double reciprocal plot। Why double reciprocal? Because we have used this 1 over V naught and 1 over substrate concentration, दोनों का reciprocal लिया है, and we take these reciprocals, then we get a straight line। अगर हम 1 over V naught ले लें और 1 over substrate concentration ले लें तो अगर उस वक्त प्लॉट ड्रा करेंगे तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आएगी, एंड दैट इज नोन एज Lineweaver-Burke plot or a double reciprocal plot। Here you can see that by plotting these reciprocals we can measure this 1 over Vmax and Km वैल्यू, हमें Vmax की वैल्यू मिल जाएगी और Km की भी वैल्यू मिल जाएगी towards this 0 point। Km वैल्यू कम होगी या ज्यादा होगी? ये तो कांस्टेंट ही है। ये तो कांस्टेंट है, -1 over Km ये एक है। अगर -1 over Km कोई दो दूसरा है टुवर्ड्स दिस Km value would be increased, and this one away from the zero Vmax would be decreased।
ये सारी मैथमेटिक्स है जो आप लोग मेरे से अच्छे तरीके से जानते हो। By drawing this plot, we can measure Km and Vmax, and we can also see the effects of inhibitors on the enzymatic reactions. Inhibitors ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कि inhibitors का enzymatic reaction पे क्या असर होता है, क्या इफेक्ट होगा और किस तरह के inhibitors के M को क्या करेंगे, Vmax को क्या करेंगे। ये सब कुछ हम इसी प्लॉट से मेजर कर सकते हैं। Again, the derivation is not required, but you will have to remember the final version of the equation. 1 over V naught is equal to Km over Vmax into substrate concentration plus 1 over Vmax. एक आपने वो इक्वेशन याद करनी है और एक ये इक्वेशन याद करनी है। नो नीड टू डिराइव दीज इक्वेशंस, डेरिवेशंस नहीं करनी, जस्ट फाइनल वर्जन्स याद करने हैं। By drawing this plot, we can measure Km, Vmax and enzymatic inhibitors का एक्शन हम देख सकते हैं, जो कि हम इस सिंपल हाइपरबोलिक में नहीं मेजर कर सकते। Now, the second part of the lecture is factors affecting enzymatic activity. I think so lecture has become too much boring. All are sleeping, so please get up and make yourself some fresh. यस सर। अगर क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। जी सर, हम फ्रेश ही हैं। Is there any question? नो सर। नहीं है, चलें, that's good. Hopefully आपका नेक्स्ट लेक्चर थिएटर में होगा। माशाल्लाह सर। और नेक्स्ट टेस्ट भी सर हमारा कॉलेज में ही होगा। 7 से कॉलेज ओपन हो रहे हैं, तो आपकी क्लासेस का भी स्केड्यूल देखें क्या बनता है, लेकिन होपफुली अब आपके लेक्चर थिएटर में ही होंगे। तो जो लोग लेक्चर थिएटर में सोएंगे, अनफॉर्चुनेटली उनके साथ क्या हो सकता है? सर एसी कल से चलेंगे या ऑनलाइन नहीं? क्लासेस नहीं होनी? सर वहाँ सोने का बहुत मजा आता है सर। अगर क्लासेस कॉलेज ओपन हो गया तो फिर उसके बाद आपकी क्लासेस वहीं लेक्चर थिएटर में ही होंगी। और एक नुकसान होता है लेक्चर थिएटर का, प्रॉक्सी नहीं लगती। सर 15 सर को हम हमारा रेगुलर टेस्ट आएंगे होगा। इंशाल्लाह। यस, 15 को आपका टेस्ट होगा। अगर तो क्लासेस ओपन होगी तो आपका फिर एमसीक्यू प्लस रिटन टेस्ट होगा, और अगर किसी वजह से क्लासेस ऑनलाइन ही रही तो फिर एमसीक्यू टेस्ट होगा। वाइवा तो नहीं होगा ना सर सर? अभी भी चांसेस हैं ऑनलाइन क्लासेस होने के? हाँ, तो हो भी सकते हैं। सर बायोकेमिस्ट्री का वाइवा तो नहीं होता ना? नहीं, बायोकेमिस्ट्री वाइवे के बगैर ही पास हो जाती है। सर ये ऑनलाइन क्लासेस कब तक कंटिन्यू रहेंगी? इस वीक में तो ऑनलाइन क्लासेस हैं, मींस फॉर द 2 days। ओके। तो उसके बाद छुट्टियां अभी ही तक तो करते हैं यही तो। कि आपकी क्लासेस लेक्चर थिएटर में होंगी, लाइव सेशन फेस टू फेस होंगे। सर लेक्चर थिएटर में एसी है ना? नहीं, वो शायद आपको घर से लाना पड़े। ओके सर। एसी हैं, लेकिन लगे हुए हैं। लेकिन कूलिंग उस तरह से नहीं होती। एसी जरूर मौजूद है, डोंट वरी। सो कमिंग बैक टुवर्ड्स द फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। Substrate concentration, temperature, pH, enzyme concentration. All these factors can affect the reaction velocity or reaction rate. एंजाइम कंसंट्रेशन हम देख चुके हैं। एंजाइम कंसंट्रेशन को हाफ करेंगे, रिएक्शन रेट हाफ हो जाएगा। डबल करेंगे तो रिएक्शन रेट डबल हो जाएगा। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन अगर Km वैल्यू से कम है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गई है तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन पे चला जाएगा।
बाकी टेम्परेचर और पीएच ये भी हम देख लेते हैं कि क्या होगा। मैक्सिमम वेलोसिटी, initial velocity, number of separated molecules converted product per unit time, maximum velocity that a reaction would achieve. A maximum rate that a reaction would achieve is known as maximum velocity. And we use micromole of product per minute as velocity. एंजाइम कंसंट्रेशन की बात कर ली हमने, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन की बात कर ली, फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर पे क्या इफेक्ट होगा। That is important point. The reaction rate increases with substrate concentration until Vmax has been achieved. Vmax has been achieved means that all the active sites of all the enzymes have been occupied. जितने भी enzymes थे उन सब की जो एक्टिव साइट्स हैं वो ऑक्यूपाई हो चुकी हैं, वो सारी की सारी सबस्ट्रेट से बाइंड करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रही हैं। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट पर यूनिट टाइम, और उस वक्त वो जितने भी एंजाइम्स प्रेजेंट थे वो सारे के सारे ऑक्यूपाई ही रहेंगे। लेट्स सपोज वी हैव 100 एक्टिव साइट्स, और वो 100 एक्टिव साइट्स ऑक्यूपाई हुई और उन्होंने सबस्ट्रेट्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद वो दोबारा रीयूज होंगे, फिर वो 100 के साथ बाइंड करेंगे, उन्हें प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे, फिर यूज होंगे, 100 को बाइंड करेंगे और उसे यूज करेंगे। सो मैक्सिमम रेट इज 100 पर यूनिट टाइम में वो कितना कन्वर्ट कर रहे हैं सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में, दैट इज Vmax। लेट्स सपोज एट दैट टाइम वी हैव 10,000 और 1 लाख सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स। सो वो उनका रिएक्शन रेट पर यूनिट टाइम में वो सिर्फ 100 को कन्वर्ट कर सकते हैं। सो that reaction rate would increase to 100 times, वो इसका Vmax होगा। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रिएक्शन वेलोसिटी, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन वेलोसिटी बढ़ेगी, कम करेंगे तो कम हो जाएगा, सिंपल है। रिएक्शन रेट बढ़ेगा क्यों अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं? ड्यू टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी एंड ड्यू टू इंक्रीज इन द एनर्जी दैट पासिस द बैरियर। एक्टिवेशन एनर्जी को अचीव करना ज़्यादा इजी हो जाएगा, काइनेटिक मूवमेंट ज़्यादा होगी, सबस्ट्रेट के पास एनर्जी लेवल ज़्यादा होगा और उसकी वजह से वो इस बैरियर को क्रॉस करेंगे और प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। Temperature and reaction velocity has a bell-shaped curve. With the increasing temperature, there is increase in the rate of reaction. That means increase in the velocity of the reaction until a maximum level is achieved. Further increase in temperature will decrease the reaction rate, and that is inactivation of the enzymatic activity. ये क्यों हो जाएगा? बढ़ने वाली बात समझ में आती है। उनका एनर्जी लेवल इंक्रीज कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रही है, सो रिएक्शन रेट बढ़ता जाएगा। ये विद फर्दर इंक्रीज इन टेम्परेचर ये कम क्यों हो गया है? Why there is downfall, decline in the enzymatic reaction? Denaturation of enzyme. Due to denaturation of enzymes. Excellent. All the enzymes are protein in nature, and you have already studied that with increasing temperature there is denaturation of the proteins. उनके quaternary, tertiary और secondary structures टूट जाते हैं। So denaturation causes the decrease in activity. Human body enzymes usually act as 37 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ इस रेंज में काम करते हैं और इसके बाद वो डाउनफॉल आ जाता है उनका। We can use a Q10 वैल्यू, टेम्परेचर कोफिशिएंट। अगर हम 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी में कितना डिफरेंस आता है, उस दैट इज टेम्परेचर कोफिशिएंट, एंड यूजुअली इट इज 3। अगर 3 मीन्स Q10 3 मीन्स
कि अगर हम 10 डिग्री सेंटीग्रेड एंजाइमेटिक रिएक्शन बढ़ाएंगे तो एंजाइमेटिक रिएक्शन 3 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। लेट्स सपोज अगर उसके पहले वेलोसिटी 20 थी तो 10 डिग्री से इंक्रीज करने से वो 60 पे आ जाएंगे। 3 टाइम्स ऑफ 20 दैट इज Q10। Optimum temperature for enzymes is between 35 to 40 degree centigrade. Denaturing get starts at 40 degree centigrade. इसीलिए फीवर में जब टेम्परेचर बढ़ता है तो हम ज़्यादा वीक हो जाते हैं। वाई? क्योंकि इंक्रीज इन टेम्परेचर की वजह से जो एंजाइमेटिक रिएक्शंस होते हैं वो भी स्लो डाउन हो जाते हैं, वो उस तरह से काम नहीं करते। और परसिस्टेंट हाई ग्रेड फीवर, लो ग्रेड फीवर, जिन लोगों को फीवर रहता है, परसिस्टेंट है, बहुत अरसे से है, तो उनमें बॉडी वीकनेस ज़्यादा होती है। वाई? ड्यू टू डिक्रीज इन द एंजाइमेटिक एक्शन। एंजाइम्स ठीक से काम नहीं करते, मेटाबॉलिज्म ठीक से काम नहीं करेगा और बॉडी नेगेटिव बैलेंस में चली जाती है। हमारे एंजाइम्स तो 35-40 पे जाके ख़त्म हो जाते हैं। बैक्टीरिया एक ऐसी चीज़ है, थर्मोफिलिक बैक्टीरिया, जो हॉट स्प्रिंग्स में पाए जाते हैं, गर्म पानी के चश्मे जहाँ पे टेम्परेचर अराउंड 70 रहता है, और वो 70 पे भी सर्वाइव करते हैं, उन्हें कुछ नहीं होता। वन एग्जाम्पल इज टैग पॉलीमरेज, थर्मस एक्वेटिकस, इट्स अ बैक्टीरिया टैग पॉलीमरेज। और इसका हम एंजाइम यूज करते हैं पीसीआर रिएक्शंस में। पीसीआर को कोई आइडिया है, कभी नाम सुने? यस सर, यस सर। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज Yes, sir. चेन रिएक्शन आजकल तो बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। कोरोना में पीसीआर रिएक्शन से ही डिटेक्शन होती है कि वायरस है या नहीं है। सो जो पीसीआर रिएक्शन है उस मशीन में वो अराउंड 70 to 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है, और वहाँ पे अगर हम उसे एम्पलीफाई करने के लिए सिंपल पॉलीमरेज एंजाइम यूज करेंगे जो हमारे यहाँ, तो वो काम नहीं करते। सो यूज दिस टैग पॉलीमरेज। बैक्टीरिया से हम पॉलीमरेज लेते हैं और वो 70-80 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी काम करता है, और इससे मैंने बहुत ज़्यादा काम किया है टैग पॉलीमरेज से। खैर, मे बी सम ऑफ यू स्टूडेंट्स वुड follow the research programs and then do this genetic studies। ज़्यादातर तो नहीं करेंगे, हो सकता है हमें से कोई एक आध निकले जिसका दिल करे कि उसने रिसर्च भी करनी है, उसने आगे कुछ नया देना भी है, तो वो इन सब से फिर काम करेगा, वो टैग पॉलीमरेज जरूर यूज करेगा। पीसीआरस भी लगाएंगे आप। पीएच, every enzymatic reaction requires a particular range of pH to perform normally। हर एंजाइम को एक पर्टिकुलर पीएच चाहिए ताकि उसके जो एक्टिव साइट्स के अमीनो एसिड से वो एक महसूस प्रोटोनेटेड या डीप्रोटोनेटेड फॉर्म में रहें। सो पीएच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर पीएच बढ़ेगी तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन पे इफेक्ट आएगा, कम होगी तो भी इफेक्ट आएगा। pH decreases means that there is increased concentration of protons। so increased concentration of protons से वो deprotonated फॉर्म में आ सकते हैं। तो सिंपली भरे pH को कम करेंगे या ज़्यादा करेंगे तो रिएक्शन वेलोसिटी पे इफेक्ट आता है। एंड ऑफ कोर्स अगेन देयर इज डीनेचुरेशन। एक्सट्रीम ऑफ pH पे डीनेचुरेशन हो जाती है। Every enzyme has different optimum pH for its action। For example, pepsin is maximally active at pH 2। Pepsin is the enzyme of stomach for the digestion of proteins, and it is activated by a strong acid, hydrochloric acid, and it acts maximally at pH 2। ये देखिए, इसीलिए जब यही पेप्सिन इंटेस्टाइन में जाता है तो इनएक्टिव हो जाता है। व्हाई? बिकॉज इन द इंटेस्टाइन पीएच रेंजेस फ्रॉम 7 to 8। वहाँ पे थोड़ी सी अल्कलाइन साइड पे जाती है तो ये इनएक्टिव हो जाएगा। पेप्सी पीने से प्रोटीन्स क्यों जल्दी डाइजेस्ट हो जाती हैं?
या सॉफ्ट ड्रिंक्स लेने से स्प्राइट प्यास बुझाती है, बुझाती तो नहीं है, खैर एड्स में तो यही कहते हैं, लेकिन स्प्राइट पीने से या सॉफ्ट ड्रिंक कोला ड्रिंक्स पीने से डाइजेशन बड़ी फास्ट हो जाती है, स्पेशली प्रोटीन्स की। इसकी क्या रीज़न हो सकती है? Activation of pepsin. Excellent. Due to activation of this pepsin, soda drinks are highly acidic. तो आप उनकी पीएच को कम कर रहे हैं, स्टोमक के पीएच को, उसे एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर रहे हैं। जितना एसिडिक मीडियम प्रोवाइड होगा उतना पेप्सिन ज़्यादा रिलीज होगा और प्रोटीन्स जल्दी डाइजेस्ट हो जाएंगी। इसीलिए पेप्टिक अल्सर डिजीज में हम स्टोमक के पीएच को थोड़ा इन्हांस करते हैं, बढ़ा देते हैं, ताकि पेप्सिन कम से कम एक्टिव हो। So this graph shows different enzymes with their maximum activity. Pepsin at pH 2, trypsin at pH 6, and then this alkaline phosphatase at pH 8. You can see every enzyme has its own pH range at which it is maximally active. Alkaline phosphatase intestine में होता है। Why it is alkaline? Because ये alkaline medium में काम करता है। अगर एसिडिक होगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। Trypsin starts working at pH 2 and its maximum activity is at pH 6 and it becomes inactive at pH 9. पेप्सिन का डिफरेंट है, पेप्सिन होता ही सेकंड पे है, मैक्सिमम एक्टिव सेकंड पे, और उसके बाद इसकी डिक्लाइन स्टार्ट हो जाती है। नेचर ने हर चीज के लिए प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म्स रखे हुए हैं। पेप्सिन pH 2 पे एक्टिव होता है और pH 2 उस वक्त अचीव की जाती है जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टोमक में रिलीज होता है। और कब रिलीज होता है? जब प्रोटीन डाइट आती है। अगर आप वेजिटेरियंस हैं, वेजिटेबल डाइट ले रहे हैं, तो पेप्सिन रिलीज ही नहीं होगा, बहुत कम होता है, क्योंकि वेजिटेबल्स या कार्बोहाइड्रेट्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रोडक्शन को नहीं बढ़ाते, प्रोटीन्स बढ़ाती हैं। इसीलिए अगेन कि अगर पेप्टिक अल्सर डिजीज है या किसी को अल्सर का प्रॉब्लम है तो वेजिटेबल्स उसको एसिडिटी को कम कर देती हैं ड्यू टू डिक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड देन दिस पेप्सिन। सो रिगार्डिंग फैक्टर्स, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ पीएच, वेरी सिंपल, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं थी। इफेक्ट ऑफ सब्सट्रेट कंसंट्रेशन एंड इफेक्ट ऑफ एंजाइम कंसंट्रेशन, ये चार ही आपने करने थे। नेक्स्ट लेक्चर आपका सैटरडे को है, तो देखेंगे सैटरडे को ऑनलाइन लेक्चर लेना है या आपका फिर मंडे से स्टार्ट करनी है फिजिकल क्लासेस। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क। सर ये सॉफ्ट ड्रिंक्स वाकई नुकसानदेह होती हैं हेल्थ के लिए? Please speak a bit louder. I could not hear you. सॉफ्ट ड्रिंक्स नुकसानदेह होती हैं हेल्थ के लिए? सॉफ्ट ड्रिंक बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती हैं, नॉट ओनली कि पीएच, उसके और बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक 250 लीटर जो हम ml की एक छोटी बोतल पीते हैं, उसमें शुगर कितनी होती है? काफ़ी ज़्यादा होती है सर। बहुत ज़्यादा होती है, अराउंड 20 ग्राम्स, चीनी के बाद 5 बड़े चम्मच, ठीक है, तो सारे के सारे मेटाबॉलिज्म खराब करती है। सेकेंडली, इनमें फास्फोरस ज़्यादा होती है, तो जितनी ज़्यादा फास्फोरस होगी उतना ही कैल्शियम बॉडी से एक्सक्रीट कर जाएगा किडनी से। सो एक तो यूरिनेशन ज़्यादा होती है, यूरिन बहुत ज़्यादा आता है। सेकेंडली, बॉडी कैल्शियम बोन डीमिनरलाइजेशन करती हैं। इसके अलावा भी बताता हूँ क्या कुछ करती हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स। यस सर। सर बता दे। बता दूं? पीनी तो आपने फिर भी, ये कौन सा छोड़ देनी है? नहीं सर, ये जो आप बात बता रहे हैं ना, मैंने ये मैट्रिक में सुनी थी और मैं तब से नहीं पी। वेरी गुड। मैंने भी अगर कोई ऐसा भी है जिसने, सर, हाँ,
सॉफ्ट ड्रिंक से अंदर पीएच चेंज होती है बॉडी का, जो नॉर्मल होम्योस्टेसिस है वो प्रॉब्लम करता है। फिर इनकी वजह से प्यास ज़्यादा लगती है, ये हाइपरटोनिक होती हैं, कंसंट्रेटेड है ना, तो हाइपरटोनिक होने की वजह से इनकी प्यास भी ज़्यादा लगती है। फिर इनमें शुगर ज़्यादा है, तो आप डाइट के जो खाने के बजाय फिर ये पीने से पेट भर जाता है, लेकिन जो आपको नॉर्मल न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो नहीं मिलते। और इसकी थोड़ी सी एडिक्शन भी है, ज़्यादा नहीं है लेकिन थोड़ी बहुत एडिक्शन तो बहरहाल इनकी है ऐसा या नहीं है? सर सर चाय की भी एडिक्शन होती है। सर बिल्कुल है सर। चाय की एडिक्शन या सॉफ्ट ड्रिंक से एडिक्शंस को हम एडिक्शन कहते नहीं है, दैट इज हैबिचुएशन। हमें आदत हो जाती है, लेकिन अगर प्योर एडिक्शन में जाएंगे तो शायद वो एडिक्शन नहीं है। आदत ज़रूर हो जाती है कि हम लोग चाय के बगैर रह नहीं सकते, लेकिन अगर आप चाय नहीं भी पिएंगे तो फिर भी उसमें कोई ज़्यादा इशू नहीं आता। इसीलिए तो स्मोकिंग को भी कुछ लोग एडिक्शन कहते हैं, कुछ नहीं कहते, क्योंकि स्मोकिंग छोड़ी जा सकती है। जस्ट लाइक अगर आप सॉफ्ट ड्रिंक्स छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं। आई नो ए पर्सन जो सिंगल सिटिंग में 1.5 लीटर कोक पीता था, 1.5 लीटर वाली बोतल, और अब वो सॉफ्ट ड्रिंक्स के पास भी नहीं जाता। सॉफ्ट ड्रिंक्स के पीने से डायबिटिक्स में ग्लूकोज लेवल, ग्लाइसेमिक कंट्रोल बहुत बुरा होता है, और ऑफ कोर्स ये जॉइंट्स को भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं, लेकिन क्योंकि हमें अच्छी लगती हैं इसलिए हम ज़रूर पिएंगे। एंड डू यू नो कोको कोला का सीक्रेट इंग्रेडिएंट, तो क्या किसी को पता है कि वो क्या होता है उसमें जो कंसंट्रेट यूज़ करते हैं वो? नो सर। That's still a secret. कंसंट्रेट हमेशा कंपनी खुद प्रोवाइड करती है, आगे सारे से डाइल्यूट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करते हैं, कार्बोनेटेड बनाते हैं, वाटर ऐड करते हैं, लेकिन कंसंट्रेट हमेशा कंपनी से ही लेते हैं। That's still a secret कि उसमें यूज़ क्या करते हैं। So we don't know कि वो मटेरियल कैसा है, या वो इवन हलाल से लेते हैं या हराम से लेते हैं, वी आर नॉट श्योर। सर इतनी टेक्निक है, हमें पता चल जाना चाहिए कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन चल जाना चाहिए। कोशिश नहीं तो आपने पिछले दिनों यूट्यूब पे वीडियोस भी देखी होंगी कि आपकी जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं वो लोकल घरों में तैयार हो रही हैं, पाकिस्तान में तो होती हैं, उससे मिलती जुलती चीज जरूर बन जाती है, लेकिन एग्जैक्ट वो कंसंट्रेशन या वो फार्मूला नहीं मिलता। इससे रिप्रोडक्शन एबिलिटी पे कोई इफेक्ट होता है। जस्ट लाइक कि आप रेस्टोरेंट्स में जाके स्टेक खाते हैं या कोई भी खाना लेते हैं, तो हर रेस्टोरेंट का टेस्ट अपना है, हालांकि आप सबको पता है कि उसमें इंग्रेडिएंट्स वही यूज होते हैं, किस कंसंट्रेशन में और कब मिलाना है, दैट्स इंपॉर्टेंट। सर में अल्कोहल भी होता है। क्या चीज? सर सॉफ्ट ड्रिंक में मैन्यूट अमाउंट में कहते हैं अल्कोहल भी होता है। इट्स स्टिल डिबेटेबल। अल्कोहल नहीं होती वैसे, क्योंकि उन्होंने लिखा भी नहीं होता, तो उसमें अल्कोहल सॉफ्ट ड्रिंक्स में नहीं होती। अगर सॉफ्ट ड्रिंक्स में भी अल्कोहल हो जाए तो वो अल्कोहलिक ड्रिंक्स बन जाएंगे, तो वो इतने तो एथिक्स रखते हैं तो सॉफ्ट ड्रिंक्स में अल्कोहल नहीं डालेंगे। हाँ, बियर उसमें आप कह सकते हैं, लेमन जो माल्ट है या बियर है, कि उसमें भी लिखा तो होता है नॉन अल्कोहलिक, उसमें थोड़ी बहुत क्वांटिटी शायद होती हो, आई एम नॉट श्योर। सो सर आपको टेंडेंस लिंक शेयर हो चुके? जी सर। यस सर स्प्राइट और 7 अप का भी बता ही दें आप। स्प्राइट और 7 अप में कंसंट्रेशन में थोड़ा डिफरेंस है, कुछ लोगों को स्प्राइट अच्छी लगती है, कुछ को 7 अप अच्छी लगती है, उसमें और कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और एक ये मिसकंसेप्शन है कि वाइट ड्रिंक्स आर बेटर देन ब्लैक ड्रिंक्स, सफेद है ना इसलिए। अगेन रेसिज्म, कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता अगर आप वो स्प्राइट या 7 अप लें या पेप्सी और कोक पिएं।
ये वैसे ही है जैसे पेप्सी और कोक में डिफरेंस है, उसी तरह स्प्राइट और 7 अप में डिफरेंस है। सर ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीने से रिप्रोडक्शन एबिलिटी इफेक्ट होती है? आई एम नॉट श्योर, मैंने कभी इस पे पढ़ा नहीं है। इस पे अगर आप गूगल करेंगे या ऑनलाइन लिटरेचर में जाएंगे तो आपको बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा सॉफ्ट ड्रिंक्स की रियलिटीज में, सॉफ्ट ड्रिंक्स बनती कैसे हैं और सॉफ्ट ड्रिंक्स के क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। जी सर। सर अल्कोहल के यूजेज से जो हम टर्म इस्तेमाल करते हैं कि फलां बंदा टुन हो गया है या उसे चढ़ गई है, तो इसका क्या मतलब है सर? अगर आप सेकेंड ईयर में होते तो इसका मैं पूरा आपको मेटाबॉलिज्म पढ़ाता लेक्चर में। अल्कोहल जो इनहिबिटरी न्यूरॉन्स है उन्हें इनहिबिट कर देती है, जो आपको रोक रहे होते हैं कि मैंने ज़्यादा नहीं बोल रहा, उन न्यूरॉन्स को इनहिबिट कर देती है। तो चलने का मतलब यही होता है कि उसकी इनहिबिशन जो है, जो उसकी इंस्टिंक्ट थी उस बंदे की, वो सारी की सारी इनहिबिट हो गई है। तो अब उस पर खुद पे कंट्रोल नहीं रहा, तो उसके बाद उसे कहते हैं गोचर की, क्योंकि जितनी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी उतनी इनहिबिशन ऑफ न्यूरॉन ज़्यादा होगी और उतना ही बंदा टून ज़्यादा हो जाएगा। इससे फर्दर डिटेल्स में सेकेंड ईयर में जब आप जाएंगे तो मेटाबॉलिज्म करेंगे, फिर आपको क्लियर कट आइडिया हो जाएगा। एक और जो बहुत ज़्यादा आता है, ईद के अगले दिन जो न्यूज़पेपर आ रही होती है 50 बंदे जहरीली शराब पीने से मर गए, तो वो जहरीली शराब मिथाइल अल्कोहल की बन जाती है इंस्टेड ऑफ इथाइल अल्कोहल। जो हम हमारे गांव में फैक्ट्रियां लगी होती हैं बनाने के लिए, सर तो कोई हार्ड एंड फास्ट आइडिया नहीं होता कि कैसे करना है, क्या करना है, तो इंस्टेड ऑफ इथाइल अल्कोहल मिथाइल अल्कोहल बनती है, दैट इज टू मच टॉक्सिक, और उसके पीने से फिर बंदे खत्म हो जाते हैं। अगर सिंपल ड्रिंकिंग भी बहुत ज़्यादा कर ली है तो ब्रेन डैमेज होता है, हाइपोग्लाइसीमिया होता है, कोमा में जाता है पेशेंट, और कोमा के बाद डेथ। अल्कोहल ड्रिंकिंग is scientifically proven that it's wrong. रिलीजन को तो हम साइड पे कर देते हैं, साइंटिफिकली भी अल्कोहल जो है वो बॉडी के लिए नुकसानदेह है, फायदेमंद नहीं है। ओके, बैक टू द लेक्चर। फैक्टर्स अफेक्टिंग द एंजाइम एक्टिविटी, माइकलिस-मेंटेन इक्वेशन, ये आपने लिपनकॉर्ट से करना है। सिंपल दो पैराग्राफ्स दिए हुए हैं, नथिंग मच। हाँ, जिन्हें काइनेटिक्स ज़्यादा डिटेल में करने का शौक है, देन गो फॉर हार्पर। हार्पर में पूरा चैप्टर दिया हुआ है काइनेटिक्स का, चैप्टर 8। लेकिन जितना आपको रिक्वायर्ड है वो लिपनकॉर्ट में दिया हुआ है। सो इट्स अप टू यू कि आप क्या चॉइस करते हो। टिल योर फर्स्ट लेक्चर आई वुड लाइक टू से गुड बाय, have a nice day and listen your lectures carefully. Thank you very much. थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज। सर अल्लाह हाफिज़।